ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमपादः। स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः। सो स्वप्नस्थानम् अस्य तैजसस्य स्वप्नप्रस्थानः। जागृत प्रज्ञा अनेक साधना बहिर्विषय इव अवभासमाना मनस्पंदन मात्रा सती तथा भूतं संस्कारं मनसि आधत्ते। तन्मनः तथा संस्कृतं चित्रतैव पटो बाह्य साधन अनपेक्षम् अविद्याकामकर्मभिः प्रेर्यमाणं जगत् जागृद्वद् अवभासते। तथा च उक्तम् अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय इति तथा परे देवे मनस्येकी भवति इति प्रस्तुत्य अत्रैष देव स्वप्ने महिमानम् अनुभवति इति अथर्वणे। सो हियर मनस्पंदन मात्रा जागृत प्रज्ञा अनेक साधना, that means अनेक साधना बहिर्विषय इव अवभासमाना. It's a manaspandana matra. See, the important thing is that the Acharya says here manaspandana matra, meaning what? The bahya prajna, the awareness of the outside objects, the awareness of outer objects is nothing but manaspandana matra, meaning this bahya prajna is outer awareness of outer world is nothing but manaspandana matra, meaning it is only vibrations of mind or modes of the mind. Manaspandana eva. जब मन स्पंदन है ना, outside awareness, bahya prajna is manaspandanam. If manaspandanam stops, there is no question of outer awareness. Bahya prajna will not be there. What is prajna here? Awareness of outer objects. So manaspandana matra. Manaspandana matra means what? Here there is nothing like outside objects, actually speaking. Everything is in the mind. All of them are spurana of the mind. Manaspurana eva. So, manaspandana matra sati tata bhutam samskaram manasi yadhatte. So, because it is all manaspurana, where are we experiencing the world and vibrations in the mind? Mind spandana, it takes place in the mind. And then that spandana is considered as awareness of the outer world. So like a painting on the cloth, it is all painted on the mind screen. So chitritaiva pato bahya sadhana anapeksham avidya kama karma bihi preryamanam jagradvad avabhasate. Now see, so the
it is also jagratvad avasate. Swapna also is manaspandana matra, is only the vibration of the mind there, in the absence of the external gross objects. So, therefore, in fact, then what is the knowledge of the waking world? Knowledge of the waking state also is purana of the mind. What we have to understand is that the waking state also is like a dream state, and dream state also is like waking state. ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, because what is happening in waking and dream is same. The only difference is that the waking state is more stabler and the dream is highly fickle. Otherwise, sense organs are same. Sense objects are created by us. There also prajna is there, awareness is there. And that is spandana matra, only mind vibration only it is. Manaspandana matra. देखिए, स्फुरण एव स्वप्न में बाह्य विषय अनपेक्षया, meaning in the absence or without depending on the external objects. But their mind is creating its own objects. But what is waking plane? Waking plane also is like dream only, dream-like. There also experiences are going on. So, that's why some people call it as wakeful's dream. So here, what we have to understand is this much. Now, Indriya apekshaya antastatvat manasaha tadvasana rupa cha swapne prajnayasya iti antah prajnaha. Vasana rupa cha swapne prajnayasya iti antah prajnaha. Now see, Indriya apekshaya antastatvat. In comparison to Indriyas, why it is called antah prajna? जागृत स्थान बहिष प्रज्ञा बोल दिया, इसको यह प्रज्ञा अंत प्रज्ञा कह रहे हैं. तो फर्स्ट मंत्र यू सी जागृत स्थानो बहिष प्रज्ञा, यहाँ पे स्वप्नांत स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञा. जागृत वेकिंग स्टेट इज रिफर्ड एज बहिष प्रज्ञा, स्वप्न इज अंत प्रज्ञा. व्हाट इज प्रज्ञा? Awareness of something else, Vishaya Vastus, in the respective states. So, compared to senses, the mind is still deeper, subtler. So, Indriya apekshaya antastatvat manasaha tad manasa tad vasana rupa cha swapne prajnayasyati anta prajna. So, therefore, what we have to understand now is that what is anta prajna? Acharya says that awareness in dream is nothing but it is taking the forms of mental impressions that are caused in waking state. While we are in waking, whatever impressions are created, that with that impressions which are created inside, उस सारा impressions को लेकर के I am creating my own srishti, my own world. Therefore, it is antah prajna, awareness of the internal objects. Now see. So, swapna is born of what? Impressions. Number one. Or samskara. It's called, otherwise it is called as samskara janya, born of impressions. Now see, when we say swapna is samskara janya, then what about waking state? Waking state also samskara janya. वो यही फर्क है, एक ही फर्क है, अंत प्रज्ञा बहिष प्रज्ञा, इतना ही फर्क है. Waking state also samskara janya only, impressions of many lives. All see why this we got this life in this situation, in this particular, in the world jagat like this. Whatever it is given to you,
the kind of body, the kind of situation you are in, the kind of everything, whatever is bestowed to you, is all collection, amalgamation of many impressions of earlier lives. So Jagrata Avastha also is samskarajanya only. But स्वप्न में क्या होता है, इस वेकिंग स्टेट, इस जन्म में, इस जागृत अवस्था में हमारा जो स्वप्न अवस्था जो है, इस जन्म लेने के बाद इस जागृत अवस्था में हमारा दिन भर का जो जो इम्प्रेशंस कलेक्ट किया जाता है, उन सब का इकट्ठा करके एक फिल्म बनाना रात को सोते समय, उसको हम कहते हैं स्वप्न। मगर ये बाह्य फिल्म जो हम देख रहे हैं, ये किसने बनाया है? तो हमारा पूर्वजन्म का संस्कार ही है। इन द टोटल वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड आवर वर्ल्ड, so our world is creation of our impressions. So therefore very important. So therefore in that way both the swapna avastha and jagrata avastha are vasanatmak, meaning both are sanskarajanya. See, manasah tad vasana rupa cha swapne tad vasana rupa cha. So mind is vasana rupa. Whatever we have seen in the waking plane, that vasanas. But what about waking plane? It is also vasana rupa. So therefore, in this way, the only sim farak kya hai? Dream and waking state mein, waking state is relatively stabler compared to dream. Okay, now, so what is bahya prajna, bahish prajna, visa? What is a bahish prajna? Awareness of the gross objects, experiences gained through the sense organs, that visa. अभी तक जो हुआ ये भी वासना रूप है, वो भी वासना रूप है, ये भी संस्कारजन्य, वो भी संस्कारजन्य, ये इसमें भी प्रज्ञा है, उसमें भी प्रज्ञा है। स्वप्न में भी हमारा दुनिया हमने बनाया, इधर भी हमारा दुनिया हमने बनाया, देखिए। और यहाँ पे भी 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम विषय का भोग करते जा रहे हैं, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते जा रहे हैं, और स्वप्न में भी स्वप्न वस्तुओं का भोग हो रहा है। वहाँ पे क्या है? सेम इंद्रियास। वहाँ पे भोग्य वस्तु क्या है? स्वप्न भोग्य वस्तु। देखिए, एक्चुअली हमारा मन में एक प्रॉब्लम है, जैसे महात्मा लोग हटा देता है उसको, कि हम जब स्वप्न 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 बात कहते रहते हैं, हम ये बात भूल जाते हैं कि ये भी एक बड़ा स्वप्न है। जागृत अवस्था भी एक स्वप्न है, वासनात्मक संस्कारजन्य, और ये स्वप्न भी हमने सृष्टि किया, इसका भी हम उसको भूल जाते हैं। तो इसका निरूपण के पीछे क्या है, आंतर्य क्या है? दैट प्लीज अंडरस्टैंड वेकिंग टू बी ड्रीम लाइक एंड ड्रीम टू बी वेकिंग स्टेट लाइक, दैट्स इट। इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं, एक्सेप्ट ओनली वन फर्क, स्टेबिलिटी। अच्छा, सो जागृत अवस्था में बुद्धि मेक्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड, ऑब्जेक्ट जितना भी है दे एलिमेंट बाय बुद्धि आउटर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, नाउ हु इज तैजस? आचार्य सेस नाउ। सो हमने वासना रूपाचा, वासना स्वप्ने प्रज्ञा यस्य अंत प्रज्ञा, यहाँ तक हम देख चुका है ना? अब देखिए, केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषयत्वेन भवति इति तैजसः। ये तैजस कौन है? केवल प्रकाश रूपायाम, बिकॉज यहाँ पे क्या है? बोथ आर देयर, ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो आर देयर, आउटर ऑब्जेक्ट्स, एंड माइंड ऑल्सो इज रिमेनिंग। देखिए, मन का आई कांट एक्सप्लेन, लाइक स्पार्क्स, यू नो, स्पार्क्स, स्पार्क होता है कि नहीं? वैसे ही
मन में it's a sparkling going on. Don't understand in any other way. It is spark only. If I am a yogi, I can see your sparks. Full stop. जब जब मन में भी विषय वस्तु आ जाता है, उसका आप अंतःप्रज्ञ से देखते हैं, that kind of a knot is created there. That विषय वस्तु है. But विषय वस्तु is also made up of mind only. So pure luminosity is there in Tejas. Teja. केवल प्रकाशायाम. See, केवल pure only prakasha swarupayam. It appears only as a luminous thing. That's it, mind. It appears as a luminous thing. और योग शास्त्र में तो इसका रंग भी, मैंने yesterday I told you. The luminosity doesn't go, but इसका रंग तो बदलते रहते हैं. It shines in different colors. There is no, they don't have to any other thing to understand in this. It is not a poetical expression of luminosity. The pakka luminosity only. So here what is Tejasa? Tejasa is that because he is luminous, kevala prakasha swarupayam vishayatvena bhavati iti Tejasaha. So he is called Tejasa because he becomes the witness of the mental vrittis. Tejasah, cognition. वहाँ पे but devoid of, see, विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलायाः बोध्यत्वम. यह पुनः केवला वासना मात्रा प्रज्ञा बोध्येति. स्थूल में क्या है? सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलायाः बोध्यत्वम. बट यहाँ पे यह पुनः केवला वासना मात्रा प्रज्ञा बोध्येति. प्रविविक्तो भोगः इति. केवल वहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है. ओनली ल्यूमिनासिटी इज देयर. सो कॉग्निशन इज देयर विदाउट एनी ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स एंड सिंपली इट अपियर्स एज अ ल्यूमिनस थिंग. दैट्स इट. नाउ सो विषय सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलायाः बोध्यत्वम. दिस मीन्स व्हाट? जस्ट एज विश्व मीन्स जागृत स्वप्न, जागृत स्थिति अभिमानी, जागृत अवस्था अभिमानी विश्व, स्वप्नावस्था अभिमानी तेजसः. सो जागृत अवस्था अभिमानी विश्व इज देयर. ही डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स फॉर एक्सपीरियंसेस. बट यहां पे मन में क्या हो रहा है? केवला वासना मात्रा प्रज्ञा. ऑल इंप्रेशंस ओनली आर कुक्ड देयर. देखिए, नाउ what is this dream state? Let us see now. Let us little bit of 2-3 things. Lot of things are there. थोड़ा अभी आज देखते हैं, फिर कुछ नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अगले महीने. Now, first point, very simple. The impressions of the waking state we see in the dream state. Number 1. Number 2, these impressions could be whatever we see in dream. Impressions of waking state we see in dream. Okay. But which waking state? Impressions of waking state of earlier lives also. तो कहीं कहीं जन्मों का संस्कार, नॉट वन जन्म, जन्म जन्म का संस्कार, वहाँ पे पूरा मिक्सचर हो गया है. इट्स पर्सनैलिटी इज सच ए मिक्सचर. एंड यू नो, देखिए, ईश्वर इस केवल कर्म फलदाता. आप ये जरा शांत सुन लाना. और कर्मफल दाता में 2 तरीके के हिसाब से भगवान ईश्वर जी करते हैं काम. वन इज सर्टेन थिंग्स आर गिवन चॉइस टू जीव, सर्टेन थिंग्स आर चॉइस इज नॉट गिवन. किसमें? आपका ही कर्म आपको ही भोगना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल. वहां पे 2 तरीके के मेडिसिन होते हैं, दवाइयाँ. एक, there is no choice for you that you have to take it. Same time the sister will come, she would administer that pill or IV or IM, intramuscular or intravenous, or you are subjected to test, whatever it is. Some kind of things regularly should go on and they will decide and you don't have any choice.
बट कुछ ऐसे भी चीज़ है, चॉइस इज गिवन। देखो, यू कैन नॉट अवॉइड दिस टेस्ट। कितने बजे करेंगे आप? 11 o'clock और 12 बजे या 1 बजे आओ, बस ब्लड टेस्ट करना है। कितने बजे आप तैयार हो जाएंगे? पेशेंट से पूछते हैं कि नहीं। आप तो अभी खा सकते हैं बिना तेल, और बताइए कि क्या कौन सी सब्जी खाना चाहते हैं, अभी क्या सब्जी है। और रोटी भी खा सकते हैं और चावल भी क्या चाहिए अभी आपको। तो कुछ चॉइस दिया, कुछ चॉइस दिया नहीं जाता। अच्छा, ये एंटीबायोटिक है, आप लेंगे? ऐसा नहीं पूछते। ये इंजेक्शन है सिस्टर, छोड़ दो ना मुझे। हम छोड़ देते, कोई बात नहीं, मुझे देखने तो जरा हाथ कैसे है आपका, करके पचक, नो मेर्सी। जैसे वैसे ही बिफोर वी टेक जन्म, अब देखिए, कोई ना कोई कुछ चीज़ भगवान बोलते हैं, देखो ये मैं निर्णय ले लेता हूँ, सम थिंग्स आर गिवन, बट सर्टेन थिंग्स हम जन्म लेने से पहले ही हम इतना संस्कार मिक्सचर, एडमिक्सचर ऑफ जन्म का संस्कार इतना है, रंग वैरायटी इतना है कि हम कंफ्यूज हो जाता है कि क्या क्या इस आने वाले जन्म में एग्जॉस्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग जोक्स हियर, आई एम सीरियस अबाउट टॉकिंग इट। द जीवा गेट्स कंफ्यूज्ड, दैट इज सो मेनी वेराइटीज ऑफ थिंग्स आर देयर, वेराइटीज ऑफ डिजायर्स आर देयर, एंड सब एक बार मैं पाना चाहता हूं, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो ही अनेबल टू अमॉन्ग द चॉइस इज गिवन टू जीव, वो जिद करके बैठता है कि मैं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। भगवान, अरे बेटा, सपोज भगवान सजेस्ट, अरे ये सब सारे चीज परस्पर विरुद्ध है, तो ये एक जन्म में तुम भोग नहीं सकता, मेरे बात तो सुनो ना। कोई बात नहीं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। And such lives we see highly confused, fickle-minded, restless they become. They keep changing their decisions, thoughts, ideas, ideologies. Whole life they wander and they just can't apply their mind anywhere. ऐसा जीवन किसने मांगा? वो खुद ही मांगा। So भगवान ईश्वरा says, तुम्हारा ही कर्मफल का मैं फल देता हूं, बट सर्टेन थिंग्स आर इन माई हैंड एंड सर्टेन थिंग्स आर इन योर हैंड। हम बच्चे से बोलते हैं, खाना तो मुझे खाना ही पड़ेगा, और मैं ये नहीं खाऊंगा, तो जो चाहिए वो खाओ, मगर खाना ही पड़ेगा। देखो, चॉइस इज गिवन, चॉइस इज नॉट गिवन, नॉट गिवन। छोड़ दो, मुझे भूख नहीं, खाना ही पड़ेगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, तो मत खाओ। अब बताइए, अगर चॉइस दिया, नहीं दिया। तो एक एस्पेक्ट में चॉइस है, दूसरे एस्पेक्ट में चॉइस नहीं है। दैट इज रीजन वाई इन द ड्रीम में क्या हो रहा है, द इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशंस टेक्स प्लेस इन ड्रीम। असंबद्ध वासनाओं का मेल होता है, असंबद्ध वासना है। जीवन में भी होता है कभी कभी, बट स्वप्न में ज्यादा होता है, होने का संभावना भी है। ज्यादा के ज्यादा लोगों में क्या है, घोड़े के ऊपर आदमी का सर, मैंने स्वप्न देखा, क्या है, घोड़ा था, नीचे पूरा शरीर घोड़ा और फेस तो आदमी का है, वो बात भी कर रहे हैं। तो improper combinations which are not possible to exist in waking plane, they are all projected, and if they are uncontrollable, they bring out pictures also on that way. कोई पिक्चर भी है, सारा का सारा घोड़ा शरीर, सिर और थोड़ा यहाँ से पेट से निकल आदमी, सब इंग्लिश मूवी। असंबद्ध, सो चित्र विचित्र कंफ्यूज्ड संस्कार, माने एक नहीं। हम बोलते भी है ना, पार्टी जाके कंफ्यूज होके आया, किस लिए, मुझे पता नहीं लगा क्या खाना है। थिंक सो दिस असंबद्ध कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। देयरफॉर द स्वप्न में अनसीन अनहर्ड ऑब्जेक्ट्स आल्सो वी सी एंड वी हियर देम। ओके, वन मोर थिंग,
certain karmas are there whose results are not possible to be given in waking plane. So स्वप्न में कर्म फल का भोग भी होता है. Certain fruits of our karma we enjoy in dream. Those karmas, karma phalas which are not possible for that individual for many reasons, whatever the reason is, but they are fulfilled in dream. वो क्लियर हो जाता है एनर्जी, द क्लॉट एनर्जी, क्लॉटेड एनर्जी गेट्स क्लियर्ड इन द फॉर्म ऑफ फल फ्रूट in the dream. So in this way dream also is like waking state only. वहाँ पे भी कर्म भी हो रहा है, कर्म फल का भी भोग हो रहा है, ये भी वासना संस्कारजन्य, वो भी संस्कारजन्य. अब और कुछ बहुत है, कुछ लोग हैं, कुछ कहते हैं, some people say that sattva guna is predominant in waking state. Some people say. So rajoguna is predominant in swapna and tamoguna is predominant in deep sleep state. Some people का analysis. And as per the Ayurveda Shastra also, in Kapavata Pitta doshas में स्वप्न अवस्था इज पित्त दोष प्रधान. फिर पित्त में फिर अंदर उसके अंदर फिर कप वात दोष आ जाता है, कप और वात और पित्त भी आ जाएगा, बट पित्त प्रधान. तो दे एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स इज डिफरेंट. तो ऐसा स्वप्न आ रहा है माने ये दोष ज़्यादा है, वात दोष, वात दोष ज़्यादा होने से ऐसा ऐसा स्वप्न होता है. डिटेल्स छोड़ दीजिए, मैं हमेशा स्वप्न में खेलते रहता हूँ क्रिकेट या फुटबॉल, फुटबॉल क्रिकेट छोड़ दीजिए, बट उस हिसाब से इसका मन खेल के प्रति आकर्षित हुआ. तो नाउ दैट माइंड इज एनालाइज्ड एज कपवात पित्त दोष के अनुसार देखते हैं. शास्त्र साधर, बट कहने का मतलब है ऑल दीज थिंग्स आर नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन वेदांत. वेदांता सेज दैट नो, किसने स्वप्न देखा, स्वप्न का फ्रूट क्या है, फल क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या है, ऐसा स्वप्न हमने देखा है, इसका परिणाम क्या होगा जीवन में, स्वप्न शास्त्र का एनालिसिस. दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ वेदांत. नो, दिस इज नॉट द टॉपिक. वेदांत नॉट टॉपिक. वेदांत का क्या है ना, अरे भैया स्वप्न के पीछे क्यों पड़ते हो, ये भी बड़ा स्वप्न है. एक अनेक संस्कारों का मिलन, उससे कुछ ना कुछ निकलता रहता है, उसे ज़्यादा महत्व क्या देना है. बुरा स्वप्न, अच्छा स्वप्न, जो भी है वो, जो आना है तो आने दो. सुबह जगो, भगवान का नाम ले लो, काम करो बस. अब देखिए, हम स्वप्न में अच्छा स्वप्न देख लिया तो वेकिंग प्लेन में अहंकार आ गया, ये क्या है का चिंतन है. स्वप्न में कोई बुरा स्वप्न देखा, जागृत अवस्था में फिर गिल्ट आ गई, ऐसा क्यों हुआ, स्वप्न नहीं आना था. वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः. तो वेदांत का चिंतन क्या है, देखिए वेदांत सेज दैट टाइम एंड स्पेस, देश काल वस्तु परिच्छिन्न, जिस देश में या जिस काल में जिस वस्तुओं के साथ हमारा स्वप्न हुआ, स्वप्न हमने देखा, बट दैट देश काल वस्तु इटसेल्फ इज मिथ्या. द टाइम एंड प्लेस, स्वप्न कहाँ हुआ, देश काल वस्तु में हुआ. तो कौन सी देश और कौन सा काल और कौन सा वस्तु. तो जिस देश में तुम्हारा अनुभव हुआ स्वप्न का, जिस काल में अनुभव हुआ स्वप्न का, और जिस वस्तुओं के साथ या का अनुभव हुआ स्वप्न का, बट भैया वो तो देश काल वस्तु इटसेल्फ इज मिथ्या, दे देमसेल्फ डोंट एग्जिस्ट. इफ उनका अधिष्ठान ठीक है नहीं है तो स्वप्न में क्या महत्व देना है.
तो चित्त संस्कार आर देयर, हाई है तो ठीक है रहने दो, बट देर इज नथिंग टू बी बिग इश्यू आउट ऑफ इट। वेदांति साधक बोलते तो ठीक है बाबा, कुछ वासनाएं स्वप्न में एग्जॉस्ट हो रहा है, कुछ वासनाएं जागृत में हो रहे हैं, भगवान का नाम हम लेते लेते हम सो जाते हैं और लेते लेते उठते हैं, कभी स्वप्न होता है कभी स्वप्न नहीं होता है, कभी बुरा स्वप्न कभी अच्छा स्वप्न, कभी घबराहट पैदा करती है स्वप्न, कभी आनंद देती है स्वप्न, क्या क्या है कि बट अनेक प्रकार के चित्तवृत्तियाँ तो भेजी रहती हैं अंदर भीतर, इसका कोई प्रमाण नहीं, और इसका कोई सीमा नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई मर्यादा नहीं है। जैसे संस्कार और संस्कार का मिलन किसने कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, ये सब बड़ होते जा रहा है स्वप्न के बाद स्वप्न, स्वप्न के बाद स्वप्न के बाद स्वप्न। तो वेदांति सोचते हैं कि इसका मतलब सारे चित्त में बहुत पड़े हैं संस्कार, बस इतना ही वो जान लेता है, वासना मात्र एंड बाह्य वस्तु अपेक्षया निरपेक्षया, सॉरी। Therefore, that space and time in which we see dream and that deshakala vastu is not real, therefore they don't exist. बस ये मन में विचार ला लेते हैं, लाके स्वप्न के प्रति ममता भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, बस। तो ड्रीम्स आर पेरेडिंग एंड दे पेरेड एंड पेरेड एंड पेरेड एंड वन डे दे एग्जॉस्ट एंड दे वॉश आउट। आप क्या करते हैं, एक स्वप्न देख के ऐसा ही स्वप्न रिपीट होना चाहिए, उसमें भी डिजायर, और ऐसा स्वप्न मुझे नहीं आना चाहिए मगर आ गया स्वप्न में, दर्शन स्वप्न में ऐसा दर्शन नहीं होना था फिर भी हुआ, अच्छे अच्छे दर्शन कब होंगे, अच्छे अच्छे स्वप्न कब मिलेंगे, हमको मिलेगा कब देख पाएंगे हम, ऐसा सोच सोच के और एक डिजायर, माने वेकिंग जागृत अवस्था का अनुभव और जागृत अवस्था का भोग्य वस्तु के प्रति ममता, फिर उसी वस्तुओं को, वो वस्तुओं को फिर दोबारा भोगना इच्छा, ये अलग है। हम इतना बेवकूफ़ है, जागृत अवस्था में भी नहीं है, स्वप्नावस्था में भी हम डिजायर करते रहते हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन रिलेटेड टू ड्रीम शुड बी स्टॉप्ड एंड विल बी स्टॉप्ड इन केस ऑफ ए सिंसियर सीकर, फुल स्टॉप। हाँ, कोई बोलता बीमार है तो ठीक है दवा ले लेगा, बट देयर इज नथिंग टू डिस्कस सो मच वाई एंड हाउ, क्या वाई एंड हाउ, इट्स संस्कार, बट दैट्स इट। अभी इतना आसान से हमको समझ में नहीं आएगा ये। तो स्वप्न का पूरा माल अलग है, स्वप्न में घड़ा देखते हैं तो मिट्टी अलग है, इस मिट्टी से नहीं बना, तो लाइक दैट। सो अब व्हाट इज इट नाउ, यह पुनः केवला वासना मात्र प्रज्ञा भोज्येति प्रविविक्तो भोगयति, समानम अन्यत द्वितीय पादः तेजसः। बाकी पूरा समानम, माने स्वप्नस्थान अंत प्रज्ञ। इसके बाद में यह मंत्र में दिया है सप्तांग एकोनविंशति मुख, ऑल दैट इज ट्रू आर सेम, सेम एज विथ रिगार्ड्स टू वेकिंग प्लेन, वो भी समान है, सामान्यत, नथिंग टू टॉक अबाउट इट। प्रविवक्त भुक दैट विसा, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज इज एंजॉय अंत प्रज्ञ, अंदर का। सो देयरफॉर आचार्य सेस सामान्यम अन्यत द्वितीय पादः तैजसः। सो नाउ अविद्या काम एंड कर्म, आचार्य सेस अगेन नो earlier तन्मनः तथा संस्कृतं चित्रित इव पटो बाह्य साधन अनपेक्षम अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम। So the swapna is prompted by avidya kama and karma. So कर्म से संस्कार, फिर संस्कार से कर्म, इस दोनों का चक्कर जो हो रहा है, चक्र घूम रहा है, इसका अधिष्ठान कौन है, मूल कारण क्या है, अविद्या। अविद्या से काम, काम से कर्म, कर्म से काम, काम से कर्म, कर्म से काम, फिर काम से कर्म, बस चल रहा है कर्म। That's it. Otherwise, there is nothing. Vidya padah taijasah. Now, next paragraph. Darshana adarshana vrityoho tattva prabodha lakshanasya swapasya tulyatvat sushupti grahanartham yatra supta ityadi visheshanam अथवा त्रिष्वपि स्थानेषु
तत्वाप्रतिबोधलक्षणः स्वापो विशिष्टः स्वापः अविशिष्टः इति पूर्वाभ्यां सुषुप्तं विभज्यते. Now why sushupta is now separated from dream and waking plane? This thought we will take up next month.